Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today we have started our new series of lecture about Companies Act 2017. In this lecture, we will discuss different types of companies such as single member company, private company, public company, and then the types of public companies such as listed company and unlisted company. So first we will discuss about the single member company, that what is single member company and how many members are required for its registration, and some other question that are relevant to single member company. So the members that are required for single member company is any one member or person can register single member company. Any one member can register single member company, and the person who wants to register single member company must be a natural person. The person who wants to register single member company must be a natural person, and he must be the resident or citizen of Pakistan. He must be the citizen and resident of Pakistan. Number 4, for registering single member company, the most essential document that is required to be registered with ROC, means that with ROC stand for Registrar of Company, that is Memorandum of Association. So the third requirement is Memorandum of Association. The fourth requirement is Memorandum of Association, MOA in short form, Memorandum of Association. In this Memorandum of Association, the person who wants to establish single member company will subscribe to this Memorandum of Association, and in the name clause, the name of the company will be mentioned, and after that in the principal line of business clause, the business of the company will be mentioned in this Memorandum of Association. Further, the person who wants to establish single member company will appoint a nominee. For example, if the director of single member company dies or he becomes incapacitated, at that time the nominee will come forward and will regulate the affair of the company. So the fifth requirement is to appoint a nominee. The fifth requirement is to appoint a nominee who will come forward to regulate the affairs of the company in case if the director of the company becomes incapacitated or if he dies. So at that time the nominee will come forward and he will regulate the affairs of the company. And the sixth requirement is that in this case, the written consent of the nominee is to be required to, or is to be registered with ROC, means Registrar of Company. In this case, written consent
In fifth requirement is to appoint a nominee, but before appointing a nominee, his written consent is to be submitted with registrar of the company. It is also the requirement according to the Companies Act 2017. The sixth requirement is that enough capital. Enough capital means that a person who wants to establish single member company must have enough capital in order to start the business. यानी कि वो शख्स जो के चाहता हो कि वो सिंगल मेंबर कंपनी को एस्टेब्लिश करें या सिंगल मेंबर कंपनी को रजिस्टर करवाएं, उसके पास एनफ कैपिटल होना चाहिए। और जब उसके पास एनफ कैपिटल होगा तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और उसी बिजनेस पर जैसा कि एक ही बंदा होता है तो उसका फुल कंट्रोल रहता है अपने बिजनेस पर, और जब ये कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो इसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। लायबिलिटी जब आफ्टर रजिस्ट्रेशन member has limited liability. After the registration of single member company, the member of this company has limited liability. यानी कि जब ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो जाती है तो उस टाइम इसका जो मेंबर है, जो डायरेक्टर है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। और ये कंपनी जो है इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है और इस कंपनी के जो बिजनेस है उस पर फुल कंट्रोल रहता है, ठीक है। और इसी तरह से इसकी जो लायबिलिटी है वो भी लिमिटेड रह जाती है। यानी कि ये मुकम्मल जो है डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि कैपिटल, सेल्फ कैपिटल होता है उसके पास। जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जो सोल ट्रेडर होते हैं, उनका अपना कैपिटल होता है, उनका उस बिजनेस पे जो है फुल कंट्रोल रहता है, मगर उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो यानी कि जब वो अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा दें तो एट दैट टाइम देयर लायबिलिटी कैन आल्सो बिकम अनलिमिटेड। अगर वो सोल प्रोप्राइटर जो है वो अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा दें तो उनकी भी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। तो इस लेक्चर का मकसद ये है कि सिंगल मेंबर कंपनी जो है ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास सफिशेंट कैपिटल हो और वो चाहते हों कि उनका जो है फुल कंट्रोल रहे अपने बिजनेस में। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सिंगल मेंबर कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकता है। ये जो सिंगल मेंबर कंपनी है, अगर फॉर एग्जांपल इसका जो नाम है, इसके नाम हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे लिखेंगे नाम के आखिर में कि ये सिंगल मेंबर कंपनी है। तो उसका लिखने का जो फॉर्मेट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि भाई एस एम सी पी वी टी प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि एस एम सी रिप्रेजेंट्स सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट, सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड, एंड दिस कंपनी कैन नॉट इशू देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। यानी कि ये कंपनी जो है ये अपने शेयर्स जो है जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, ठीक है। इनको मुकम्मल तौर पर जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है कि ये लोग जो है, ये जो कंपनी है सिंगल मेंबर कंपनी, ये अपने शेयर जो है पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हैं।
और इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, एक ही मेंबर होता है इसमें, सिर्फ एक मेंबर। ठीक है, ये जो चंद बातें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक ही मेंबर होता है, और मेंबर जो है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो जो है पाकिस्तान का रेजिडेंट होना चाहिए, वो पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए। और इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके जब आप MOA जो है वो सब रजिस्टर्ड करवा दें ROC के पास, ROC स्टैंड फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जब आप ROC के पास इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर करवा देते हैं अलोंग विथ रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनी, तो आपका ये सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो इस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, ये बात भी याद रखें कि इस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसके नाम से ही जाहिर है कि इस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। और जो है ये कंपनी जो है अगर वो शख्स जिसके पास इनफ कैपिटल है तो उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सिंगल मेंबर कंपनी को जो है इस्टेब्लिश कर दें। ठीक है, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।